I scored 96.8% in my class 10th boards by studying just 2 months before the boards, and here's how you can do it too. So, hello everyone, I'm Rivoli, and I'm back here with another video for 10th graders. And this is I will tell you all the strategies, all the things I followed 2 months before the boards to get the score. So, watch the video till the end and let's start. So, the very first thing I did, I still remember, is that I planned everything. Like you have December and January, right? So I just took a blank sheet, a blank notebook, a blank paper, and wrote all the things. I planned everything, like what, how am I going to utilize my time in these 2 months left. So सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कोई भी मतलब पेज नोटबुक कोई उठाओ, and the main focus of yours right now should be the hard topics, the hard subjects, your weak subjects, your weak topics, and note them down. First, focus on the hard subjects, hard topics, whatever you find hard. Like, suppose for me, it was maths, trigonometry, and those chapters. It was maths. So, first, my target was to do maths every day because I knew that if I didn't do it, I'll be struggling in the boards. So, my first priority should be focusing on the weak subject right now. So, first of all, make a plan all of your weak subjects, weak topics, and plan which subject should take how much time. Like ये वाला सब्जेक्ट मुझे इतने दिन में ख़त्म कर लेना है. चलो सब्जेक्ट भी नहीं बट टॉपिक चैप्टर्स. लाइक सपोज इफ़ आई टेक SST, सो यू हैव टू प्लान कि ये चैप्टर बड़ा है, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इंडिया. तो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 days. देन द नेक्स्ट प्लान एवरीथिंग दैट these are the chapters I find difficult. ये वाले मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं, ये वाले ईजी हैं, ये तो एक दिन में थोड़े से टाइम पे हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. तो डिसाइड करके रखो, पूरा प्लान करके रखो. सबसे पहली चीज़ जो आपकी फोकस पे होनी चाहिए शुड बी द टॉपिक्स यू फाइंड हार्ड. जैसे जो आपको हार्ड लगता है सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, वो सब्जेक्ट तो आपको हर रोज़ करना है, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हो, जो भी है आपको वो वाले सब्जेक्ट हर रोज़ करने हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के. बिकॉज नाउ ओनली 2 months आर लेफ्ट, सो नाउ यू हैव टू गेट सीरियस, you have to stay consistent, and that's how you will reach your goal. So this is the very first thing: do the weak subject every day, and with that make plans of the other subjects. Like suppose I told you just now that SST, suppose uh, this chapter of SST I will complete in 2 days, and plus जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो तो हर रोज़ करना ही है. तो जैसे आपको सूट करता है, जैसे आप कंफर्टेबल रहते हो, जैसे आप कर पाते हो, तो आपको वैसे अपना प्लान बनाना है. सपोज साइंस SST एंड मैथ्स आर द लाइक मेन सब्जेक्ट्स जिसमें आपको फोकस करना ही पड़ेगा, है ना. इंग्लिश हिंदी आप स्टिल लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बट उसे भी बिल्कुल लास्ट के लिए मत छोड़ना. बट योर मेन फोकस शुड बी द मेन सब्जेक्ट्स राइट नाउ विच हैव अ लाइक वास्ट syllabus. And just make a plan that in this week I will complete these things, and the next week I will complete these things, and your target should be December end or mid January, because mid January is like the last deadline where you should finish completing your syllabus and get started with the revision portion and question practice. And when you are doing this thing, like in December you are just covering the chapters, तो ये मत करना कि बस अब पढ़े ही जा रहे हैं, पीछे का रिवाइज़ नहीं कर रहे. पीछे का भी रिवाइज़ करते रहना है. लाइक सपोज आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, कुछ होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते. तो जो बिल्कुल नहीं आते उन्हें पढ़ते पढ़ते आपको बीच बीच में लाइक सपोज संडे को वो सारा भी रिवाइज़ करना है जो आपको अच्छे से आता है, या फिर जो आप पहले पढ़ चुके हो, ताकि वो भी दोबारा से ब्रशअप होता रहे. एंड जो वीक सब्जेक्ट है लाइक मैथ्स और वो वाले न्यूमेरिकल्स पोर्शन, वो तो आपको हर रोज़ करने करना है. एंड मैनी पीपल विल से टू यू कि अभी NCERT करने का टाइम नहीं है, NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है. बट जो मैंने किया था, जो मैं बता रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने NCERT करी थी विदाउट एनी रेफरेंस बुक्स और एनी क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज मैं बस इवन मतलब जो भी मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें भी मैं लाइक बस NCERT करती थी. एंड इससे मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वेश्चन बैंक्स मत करना, बट पहली चीज़ जो है आपको NCERT एक बार पढ़नी ही पढ़नी है. लाइक सपोज हिस्ट्री SST एक ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारी पेजेस होते हैं उसमें, काफ़ी बड़ी वास्ट होती है, बट
हर एक लाइन अगर आप पढ़ोगे, हर एक लाइन अगर आप समझोगे, तो एटलीस्ट एक बार तो फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड सेम फॉर साइंस एंड सेम फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, एवरी सब्जेक्ट वैसे तो। बट हाँ, अभी शॉर्टकट पे मत भागना कि कहीं ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे उससे पढ़ लेंगे, वन शॉट मिल जाएगा उससे पढ़ लेंगे। अभी आप ट्राई करो, क्योंकि नोट्स वगैरह में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, जैसे कोई डायग्राम है, कोई एक्टिविटी है, कोई कार्टून्स हैं, तो देर आर सर्टेन स्मॉल पॉइंट्स दैट कुड बी मिस्ड, एंड समटाइम्स ऐसा लगता है कि हाँ, हमें ये चीज़ समझ आ गई, बट जो बोर्ड का पेपर होगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा एंड क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अगर आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आप एक बार ही गो थ्रू आपने पहले से कर रखा होगा, तो आपको बेटर आइडिया लग पाएगा। सपोज़ आपको वो आंसर नहीं भी आता, बट स्टिल आप उसमें कुछ तो लिख के आ ही पाओगे कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ा था, सो मे बी दिस कुड बी द आंसर टू दिस। सो जस्ट दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। इवन बिफोर माई बोर्ड एग्ज़ाम्स, लाइक कल मेरा एसएसटी का पेपर है और बोर्ड है, और मैं एक दिन पहले भी मैंने एक बार ही गो थ्रू कर लिया था हाईलाइटेड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो यू कैन डू दैट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ प्लानिंग, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान। सो अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल बना के आपको अपना प्लान बनाना है, एंड देन आपको उस पर चलना है विदाउट एनी एक्सक्यूजेज कंसिस्टेंटली, बिकॉज जस्ट 2 months आर लेफ्ट, एंड इफ़ यू स्टिल थिंक कि हो जाएगा, ये वाला माइंडसेट मत रखना कि प्री बोर्ड से इजी बोर्ड आएगा, बिकॉज यू नेवर नो। सो एंड अगर आप प्री बोर्ड्स में इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो ये सोच के कि प्री बोर्ड्स, सब लोग कहते हैं कि बोर्ड्स प्री बोर्ड से ईजी होता है, बट वो जब ही ईजी लगेगा जब आप प्री बोर्ड्स के लिए उतनी मेहनत प्री बोर्ड के लिए उतनी प्रिपरेशन प्री बोर्ड्स के लिए करोगे ना, तो आपको बोर्ड्स बहुत ईजी लगेगा। सच्ची, मुझे भी, मैंने प्री बोर्ड्स के लिए, क्योंकि आई प्रिपेयर्ड वेल, मतलब अच्छे तो किसी के नहीं जाते, बट आई प्रिपेयर्ड वेल, सो आई थॉट दैट बोर्ड्स ईजी थे। दिस इज़ लाइक अ कॉमन डाउट, एक कम्युनिटी में भी मेरे से पूछा था कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स का लेवल कैसा होता है। एकदम सेम नहीं होता, प्री बोर्ड्स थोड़े हार्ड बनते हैं, बट इसीलिए बनते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए, बट इफ़ यू स्टडी वेल बोर्ड्स विल बी ईजी फॉर यू। सेकेंड थिंग राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन इज़ बीइंग पॉजिटिव। लाइक अभी इस टाइम पे देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अब हम क्या करें, कैसे क्या करें, एंड एक होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हम क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, जस्ट 2 months आर लेफ्ट। बट द थिंग इज़ this, if you stay positive you will receive positive results, because this really happened with me too, because I wasn't able to balance my syllabus that well, like सबका नवंबर दिसंबर तक सब लोग सैम्पल पेपर सब करना स्टार्ट कर दिए थे, एंड I was not doing that, so I was like fear of missing out, so I was scared too, but then I was like ऐसा पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, so let me just stay positive. I used to say positive things to myself that I will get 95%, I will get 95%, and I used to study, and मैं इतना ट्राई भी नहीं करती थी कि मैं जल्दी से सिलेबस करके सैम्पल पेपर पे कूद जाऊँ, बट पहला मेरा प्रायोरिटी ये रहता था कि मैं अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ लूँ, एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ लूँ। माई प्रायोरिटी वॉज टू फर्स्ट कंप्लीट माई सिलेबस अच्छे से इन डेप्थ। तो द मेन थिंग इज़ डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, डू नॉट गेट पैनिक्ड कि अब तो क्या ही हो पाएगा, हमसे 2 महीने बच्चे हैं, सब ने तो कर लिया हमारा, हम क्या ही करेंगे, ऐसा मत करना। जितना भी है जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। सो राइट नाउ योर मेन गोल शुड बी सिलेबस कंप्लीशन। द लास्ट डेडलाइन इज़ लाइक मिड जनवरी, उसके बाद तो यू शुड ओनली फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, sample question papers and all of that. And if you're watching this video like when your pre-boards are going on, or there's pre-board 2 just after few days, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपने pre-boards में ना पूरा टेक इट एज अ मॉक बोर्ड पेपर, सो दैट आप उसमें अपनी पूरी प्रैक्टिस करके आओ, कैसे आपको पेपर प्रेजेंट करना है, कितना आपको टाइम लग रहा है, कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अभी प्री बोर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपकी प्री बोर्ड्स की मिस्टेक्स होंगी ना, बहुत बहुत ज़रूरी है वो मिस्टेक्स एनालाइज़ करना कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। अगर स्पीड की कुछ वो है तो फिर आपको कहाँ का स्पीड अपनी बढ़ानी है, कितने टाइम पे कंप्लीट करना है, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप अभी अपनी टेस्ट कर सकते हो। एंड सेम विद सैम्पल पेपर्स, जब सिलेबस हो जाएगा तो सैम्पल पेपर्स जब करोगे तब भी ये सारी चीज़ें ट्राई करना, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, इन विच सब्जेक्ट, एंड
कितना टाइम आपको लग रहा है। डाउट में से ये भी आता है कि आपसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन बैंक्स के सॉल्व नहीं होते। एंड माई ओनली सजेशन इज़ दैट यूट्यूब से हेल्प लो, अपने टीचर्स से हेल्प लो। यूट्यूब से मैं हेल्प लेती थी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे एक बार समझो, दोबारा करो, समझो, दोबारा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी अगर आप उसे समझना चाहते हो। लाइक अगर आपको इतना बड़ा सा कोई अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है एंड उसे देखते ही आप ऐसे करने लगे कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। एक बार ट्राई तो करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता था। देखने में कुछ क्वेश्चंस बहुत डरावने से होते हैं, बट इफ़ यू एक्चुअली जेन्युइनली वांट टू अंडरस्टैंड इट, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है तो अभी बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने भी सैम्पल पेपर कर सकते हो उतने करो, उस चीज़ पे ध्यान दो। एंड अगर आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है तो भी सिलेबस पे ध्यान दो। और ना ज़्यादा स्ट्रेस वेस मत लेना, इट्स वेरी नॉर्मल। जैसे आप स्कूल में एग्जाम्स देते हो ना, वैसे ही बोर्ड्स में देने जाते हैं। सो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। बस वो एक प्रेशर से रहता है कि हाँ बोर्ड है, बट इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है कि पूरे दिन कमरे में बंद होकर पढ़ रहे हो। थोड़ा सा बाहर बाहर भी जाना, फ्रेश एयर एंड ऑल ऑफ दैट। मैं तो पढ़ती भी मेरे हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम पे आया था सो कहे इतना स्ट्रेस भी मत लेना, मज़े भी करना। मैंने भी अपने बर्थडे पे मज़े करे थे। इतने कम टाइम में चीज़ें याद कैसे करनी है, सो मैं क्या करती थी, जो भी मुझे याद करना होता था मैं लाइक एनसीईआरटी लेके बैठती थी अपनी। अगर आप अपने मेरे 10th वाले व्लॉग्स भी देखोगे तो एनसीईआरटी बुक लेके बैठती थी एंड साइड में एक रफ नोटबुक। जो भी एनसीईआरटी पढ़ रही होती थी वो साइड में लिख रही होती थी, जो इम्पोर्टेंट लगा लिख लिख के याद करना। एंड दिस रियली वर्क्स। लाइक अगर आप सेम चीज़ पढ़ रहे हो, सेम चीज़ लिख रहे हो एंड जब तक वो चीज़ मुझे याद नहीं हो जाती थी ना, तो मैं लिखती रहती थी। लाइक मोस्टली मैं ये करती थी केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए, लिख लिख के ही मैंने सारी याद करी है। स्पेशली एसिड्स बेसिस एंड कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में इतनी सारी रिएक्शंस थी, तो वो सारी मैंने लिख के याद करी है। एंड सेम बायो भी मैं लिख के याद करती थी, क्योंकि उसमें भी लाइक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। सो आई जस्ट यूज्ड टू read and then write. Then after doing a chapter like हो गया, then I used to close the book. एक एक टॉपिक से मैं देखती थी कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी, खुद लिख रही हूँ, खुद लिखती थी एक पेज पे एंड फिर बुक खोल के देखती थी कि हाँ ये था। एंड दिस इज़ एक्टिव रिकॉल, यू नो। सो जो टॉपिक मिस हो जाए वो दोबारा से एक बार पढ़ लो एंड देन दोबारा से लिख के देखो, तो बहुत अच्छे से लाइक माइंड में वो चीज़ रिकॉल हो जाती है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन revise all of that. Whenever you are watching this, I will suggest you to make a reaction sheet for chemistry. You can also find it in my channel. I made that in my time, so you can use it. And you can also make a maths formula sheet so that before your board exams you can just take it and go through all the reactions and formulas. Same with physics formulas and maths formulas. And you can also make short notes of bio, of history, geography and all subjects. Short notes are okay. पूरे लिखने मत बैठना, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, इसलिए शॉर्ट नोट्स ही बनाना अगर बनाना चाहो। बाकी आप बुक में भी छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। बाकी मैंने बस क्या करा था मैं अपना बताती हूँ। केमिस्ट्री की रिएक्शन शीट बनाई थी, मैथ्स की फॉर्मूला शीट बनाई थी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी में शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, और हिस्ट्री में डेट्स की लिस्ट बना ली थी। और जो राइटर्स वगैरह जो हिस्ट्री में नेम्स आते हैं कि ड्यूक मेटरनिच जो भी है, वो ऑस्ट्रियन चांसलर जो भी था, तो वो वैसे करके जो नेम्स आते थे उनकी लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन है, ईयर्स की लिस्ट बनाई थी। हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ होती है तो उसके नोट्स तो नहीं बना पाई थी, बट हाँ हाईलाइट कर लिए थे पॉइंट्स। सो यू कैन डू दैट टू, क्योंकि ना शॉर्ट नोट्स जैसे रहते हैं तो फिर जैसे जो आपको एग्जाम डेज में गैप्स मिलेंगे उसमें आप पूरी एनसीईआरटी लेके तो नहीं बैठोगे, तो नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो you can make that. The next thing I would say is reputation, because even in my that video which I made, the very first 10th video ki don't do these mistakes in 10th grade, uh, when the new session just started, so I told you in that video as well that good reputation, आपकी good reputation रहनी चाहिए so that your internals don't get affected and your teachers give you good internals like full 20 out of 20, because 80 तो 80 मार्क्स तो आपके हाथ में है, 20 मार्क्स उनके हाथ में है, so just stay nicely at school. So let me just give you a conclusion. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर प्लान राइट नाउ इफ़ यू हैवेंट, देन हर रोज़ ना अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे ये सारा करना है और उसे कंप्लीट ही करना है। एंड हर रोज़ पढ़ाई करो, स्टडी एवरी डे विद कंसिस्टेंसी विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस मिड जनवरी।
दिसंबर एंड इज़ मोर लाइक और भी अच्छी बात है, बट मिड जनवरी इज़ द लास्ट डेडलाइन। आप जब तक तो कंप्लीट कर ही लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। एंड या उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो ज़रूर एक बार ही देख लेना। मैंने सारे सीबीएसई वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर करे थे, देख लिए थे। जो भी आपकी प्री बोर्ड्स में मिस्टेक्स होंगी वो सारी अच्छे से देखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना, पेपर प्रेजेंटेशन कितना आपको टाइम लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वुड से कि इन माई प्रिपरेशन आई यूज टू वॉच शोभित भैया फॉर मैथ्स, प्रशांत भैया साइंस एंड दिगराज सर फॉर एसएसटी। सबसे पहले बात तो वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से करा देंगे। शोभित भैया काफ़ी अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चंस करा देते हैं जो कि बोर्ड्स पे आ जाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा उनके क्वेश्चन करती थी। मैंने क्वेश्चन बैंक एक दो बार ही करा था उस वाल का मैथ्स के लिए, बट उससे ज़्यादा मैं शोभित भैया वाले क्वेश्चंस लगाती थी। सो और वो समझ नहीं आ रहा सपोज़ आपको, तो आपको शोभित भैया के एक्सप्लेनेशन तो मिल ही जाते हैं यूट्यूब पे। तो हाँ, यूट्यूब से ना आप काफ़ी हेल्प ले सकते हो। जो आपके डाउट्स आते हैं कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, वो सॉल्व नहीं हो रहा, टेक द हेल्प फ्रॉम यूट्यूब एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आपको एक टीचर से समझ नहीं आता तो दूसरे टीचर से समझो, बट यही एक ऑप्शन है जिससे आप समझ सकते हो। आपका कोई टीचर है, आप उनसे समझो एंड समझ आ जाएगा, एट द एंड समझ आ जाएगा। एंड द लास्ट थिंग, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। इवन इफ़ मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी ना, कुछ दिन ऐसे होते कि उतना नहीं पढ़ पा रहे, तब भी आई यूज़ टू से टू माई सेल्फ दैट आई विल गेट 95%, आई विल गेट 95%. सो आई थिंक दिस हैज़ अ रियली big role, because like good energy will surround you, positive energy will surround you if you believe in all that. But yeah, you can do it, it doesn't take much effort. So yeah, and back off from all the social media like Instagram, Snapchat, all of those distracting apps for just 2 months, because they are really distracting. If you think that you will manage well, and but still it might take your time which you didn't really intended to be taken. Like पता भी नहीं चलता है जब आप स्क्रॉल करने लग जाते हो। एक बार आपने कोई ऐप खोल लिया कि चलो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, तो एक बार इसे देख लेते हैं खोल के, तो अगर वो खोलते हैं ना तो वो खुल ही जाता है, वो बंद नहीं होता। सो अभी के लिए डोंट डू दैट, डिलीट ऑल दोज एप्स। एंड आई एम टेलिंग यू, आई डिड दैट टू। आई मैंने तो पूरी 10th डिलीटेड रखा था। एंड द थिंग इज़ दैट अभी तक आप जितना पढ़ रहे थे ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इन 2 months में पढ़ना ही पड़ेगा। एंड या, इफ़ यू आर न्यू एंड यू वांट some paper presentation tips, then you can watch this video I uploaded that already. And I will be uploading more such videos for you all, like since boards are like very near, and the exam gap days strategies, subject wise strategies, if you want, let me know. And don't forget to subscribe if you're new here. So, and I wish you all the very best. I wish you all the very good luck for your board exams. You will do great. Just believe in yourself. And the only thing is, you should not regret afterwards कि उतना उस टाइम पे इतना पढ़ लेते तो इतनी परसेंटेज आ जाती। अभी ना अपनी पूरी मेहनत लगा दो, because these 2 months are the game changer. So all the best, and let's meet in the next video. Till then, take care and bye.